Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYJC secretarial practice. As you all know, we have completed first chapter, that is Introduction to Corporate Finance, and then also we have completed second chapter, that is Sources of Corporate Finance, and we have started with third chapter, that is Issue of Shares, and in that also we have completed introduction part. In introduction part हमने discuss किया था about what is authorized capital, what is issued capital, what is unissued capital, what is subscribed capital, what is unsubscribed capital, okay, what is called up capital, what is uncalled capital, what is called in errors, and what is reserved capital. Okay, all such things we have learned in introduction part. And then we have learned about issue of shares. So when a company require fund, company issue shares. So company can issue two types of shares, equity shares and preference shares. Alright, and in this video we are going to discuss about methods of issue of shares. Okay, so through which method company issue the shares, that we are going to learn in this video. Okay, this answer is quite lengthy, so it will take 2 or 3 video to complete the portion. तो मैं क्या करूँगा, methods of issue of share, #1 method of issue of shares, #2 method of issue of shares और #3 3 या 4 में जितने वीडियोज़ में भी हमारा कंप्लीट होगा उतना वीडियो मैं आपके लिए इसमें बना के नंबर्स डाल दूँगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, सो फर्स्ट इन आवर टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पब्लिक ऑफर. सो एक ऐसे ही ब्रीफ आइडिया हम लोग ले लेते हैं पहले यहाँ से. ओके, उसके बाद में हम लोग उसको डीप स्टडी करेंगे. नाउ पब्लिक ऑफर, व्हेन यू टॉक अबाउट पब्लिक ऑफर, so when company wants to issue the shares, and if company issuing the shares to the general public, okay, so before issuing the shares company have to issue a prospectus. ओके, सो ये मेथड जब कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करेगा, दैट इज़ नोन एज पब्लिक ऑफर. ओके, सो कंपनी यूज टू मेथड इन दैट. एक होता है IPO, दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर. दूसरा होता है FPO, फॉलो अ पब्लिक ऑफर. ओके, सो इन डिटेल वी आर गोइंग टू लर्न दिस टू मेथड्स. एंड अनदर बी पार्ट, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. ओके, सो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, राइट इशू एंड बोनस इशू. सो इफ़ अ कंपनी वॉन्ट्स further fund, if a company need in fund, so in such case company will issue more capital, more shares, company will issue more shares. So first company give the right to the existing equity shareholders to purchase the share, that is called as right issue. Alright, and second, bonus share. So bonus share क्या होता है, it is nothing but the gift by the company to the existing equity shareholder. Alright, जब कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो जाता है सडनली, तो वो कंपनी या तो फिर कंपनी के पास रिजर्व्स होता है. ओके, तो इन दैट विद दैट अमाउंट कंपनी कैन गिव बोनस शेयर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग, राइट इशू हो या बोनस इशू हो, किसको जा रहा है, टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. दैट मीन्स जो कंपनी के ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर्स है, दोज हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, उनको ही राइट इशू और बोनस इशू मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर C, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़. Okay, so here company is issuing the shares but to their existing employees, those who are working in the organization, company is giving them shares. ये basically company क्यों करती है, to retain the employees. that means वो जो employees है जो काम कर रहे हैं, वो लोग organization को छोड़कर ना जाए, इसलिए कंपनी क्या करती है, उनके existing employees को एक ऑफ़र देती है that they can purchase the shares. ओके, जो फेस वैल्यू होगा या मार्केट प्राइस जो होगा उससे कम में उनको शेयर मिल जाता है. ओके, इसको भी हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे. ESOS क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. ESPS क्या होता है, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट शेयर्स क्या होता है, व्हाट इज स्वेट इक्विटी. ओके, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे जब हम लोग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ C पार्ट पढ़ेंगे. नाउ प्राइवेट प्लेसमेंट. सो द वर्ड इटसेल्फ सेइंग प्राइवेट. सो व्हेन अ कंपनी इशूइंग द शेयर्स, कंपनी इज इशूइंग द शेयर प्राइवेटली टू अ ग्रुप, टू अ numbers of people, to some numbers of people only. ओके, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल. एग्जाम्पल 100 लोग हैं जिसमें से कंपनी से 5 लोग को पर्सनली क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट. ओके, इन दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राइट इशू जो यहाँ पे हमने पढ़ा. ओके, एंड देन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पब्लिक ऑफर. ऑलराइट, so let's see now public offer or public issue. Public issue or offer means offering the shares to the public. All right, this is the
most common method used by the company, and this is one of the most common method which generally every company used to issue the shares. All right. The company invites the public to subscribe for its shares by issuing the prospectus. So if a company is going to issue a shares, so before issuing the shares, company have to invite the public by issuing the prospectus. All right. Prospectus क्या होता है? Prospectus is nothing but the invitation by the company to the general investors. All right. इसके अंदर कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का इंटायर डिटेल एंड कौन सा शेयर कंपनी इशू कर रही है, द प्राइस ऑफ द शेयर्स, नंबर्स ऑफ शेयर्स, the entire detail company mentioned in prospectus. All right. A company can use two pricing method to offer shares to the public. Company use two methods, two pricing method, and these two pricing method we are going to learn. Okay. First method is nothing but the fixed pricing method. Under this method, company declare the price of the shares and the numbers of shares. All right. तो ये मेथड में क्या होगा, कंपनी प्राइस ऑफ द शेयर्स कितना है, कितने नंबर्स ऑफ शेयर है, सब कुछ मेंशन करेगी. इफ़ यू वांट टू परचेज यू कैन परचेज, इफ़ यू डोंट वांट टू परचेज आप परचेज नहीं कर सकते हो. यहाँ पे कंपनी का जो प्राइस होता है वो फिक्स्ड होता है. ऑल राइट. नाउ लेट्स सी. अंडर दिस मेथड द कंपनी स्टेट्स इन इट्स प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस में क्या आएगा, द क्वान्टिटी एंड द प्राइस एट विच द शेयर्स आर ऑफर टू द पब्लिक. ऑल राइट. द सब्सक्राइबर्स or investors you can say are asked to pay a certain portion of face value of shares or entire issue price along with the application. Okay, see ये अभी जो small words यहाँ पे आ रहे हैं like face value, okay, investor, subscribers, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ. ओके, फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो शेयर का प्राइस होता है, कंपनी ने जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया होगा, दैट इज़ अ फेस वैल्यू. ऑल राइट. The company comes to know the demand of its shares only after the subscription period ends. Okay, तो जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो कितने लोग परचेज करने आ रहे हैं, देन ओनली कंपनी कैन अंडरस्टैंड कि कितना डिमांड है शेयर का मार्केट में. ज़्यादा लोग आ रहे हैं दैट मीन्स हाई डिमांड है, कोई परचेज नहीं कर रहा है मतलब लो डिमांड है या डिमांड ही नहीं है. ऑल राइट. कंपनी कैन इशू शेयर्स एट पार और प्रीमियम. Okay, what is the meaning of at par and at premium? If the face value of the share is rupees 10 and company is issuing the shares at rupees 10 only, so you can say company is issuing the shares at par. All right. Another example, if the face value of share is rupees 10 but उसका मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ वाई जो प्राइस है मार्केट प्राइस वो इंक्रीज़ हो गया है, 15 रुपीज़ हो गया है. ओके, तो मार्केट वैल्यू क्या है 15 रुपीज़, दैट मीन्स 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गया. तो दिस 5 रुपीज़ इज नथिंग बट द प्रीमियम. दैट मीन्स कंपनी इज चार्जिंग अ प्रीमियम ऑन शेयर्स. ऑल राइट. मतलब जो फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा में कंपनी बेच रही है, दैट मीन्स कंपनी सेलिंग द शेयर्स ऑन प्रीमियम. इसको बोलते हैं प्रीमियम. फिक्स प्राइस मेथड इज़ यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इशू, दैट इज़ पब्लिक इशू, राइट इशू और एसोस एक्सेट्रा. ओके, पब्लिक को भी इशू होता है ये. राइट इशू मतलब, राइट इशू का मतलब क्या हो गया, पहले कंपनी राइट दे रही है किसको, टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स टू परचेज द शेयर. अगर उन लोगों ने परचेज कर लिया गुड, नहीं परचेज किया जो बचा हुआ शेयर है, कंपनी कैन इशू दो शेयर्स पब्लिकली. ओके, एसोस का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे. नाउ द अनदर मेथड, बुक बिल्डिंग मेथड. ओके, दिस मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ फिक्स प्राइसिंग मेथड में क्या हो रहा था, कंपनी ने प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड कर दिया था. ओके, प्राइस कंपनी ने बता दिया था कि वी आर गोइंग टू इशू अ शेयर्स, 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं ऑफ रुपीज़ 10 ईच. ओके, आपको परचेस करना है, यू कैन परचेस. वहाँ पे फिक्स मेथड था, फिक्स प्राइस था. बट यहाँ पे सेकेंड मेथड क्या है, बुक बिल्डिंग मेथड. ऑल राइट. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, देखो कंपनी एक रेंज देती है प्राइस का. एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड. 100 रुपीज़ एंड 200, मतलब 100 से लेकर मिनिमम 100 एंड मैक्सिमम 200, ये प्राइस की रेंज में कंपनी विल आस्क टू देयर इन्वेस्टर, जिसको परचेस करना है मतलब जो पब्लिक है उसको कंपनी विल आस्क कि आपको कौन से प्राइस में शेयर परचेस करना है. ओके, हम किस शेयर में शेयर इशू करें, आप ये प्राइस बताओ. ओके, अब जो कम वाला प्राइस होगा ना यहाँ पे, ये जो 100 रुपीज़ है इसको बोलते हैं लोअर प्राइस या फिर लोवेस्ट प्राइस. ओके, दैट इज़ 100. और लोअर और लोवेस्ट प्राइस को ही हम लोग बोलते हैं फ्लोर प्राइस.
ओके, तो ये जो 100 रुपीज़ है इसको यू कैन से फ्लोर प्राइस, मतलब सबसे कम। ओके, अब सबसे ज़्यादा जो है वो कितना है, 200 रुपीज़ है, मैक्सिमम क्या है 200, तो इसको वी कैन से अपर प्राइस और हाईएस्ट प्राइस। ऑलराइट, एंड अपर प्राइस एंड हाईएस्ट प्राइस को ही हम क्या बोलते हैं, कैप प्राइस ये बोलो या फिर सेलिंग प्राइस बोलो। ऑलराइट, जो मैक्सिमम जो हाईएस्ट वैल्यू होगा दैट इज़ कॉल्ड एज कैप प्राइस। ऑलराइट, अब इन्वेस्टर्स जो पब्लिक जनरल पब्लिक था उन लोगों ने डिसाइड किया, ज़्यादा लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने बोला 150 रुपीज़। ओके, तो शेयर का वैल्यू कितना हो गया अभी 150 रुपीज़। तो कंपनी ने बोला ओके नाउ वी आर गोइंग टू इशू अ शेयर एट रुपीज़ 150, तो ये प्राइस फाइनल हो गया। सो ये फाइनल प्राइस को बोलते हैं कट ऑफ प्राइस। ओके, दिस फाइनल प्राइस इज कॉल्ड एज कट ऑफ प्राइस। और जो पब्लिक बोल रही है ना कि 150 रुपीज़, कोई बोलेगा 110, 120, कोई बोलेगा 150, फिर ज़्यादा लोग ने कितना बोला 150, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना इट्स कॉल्ड बिडिंग। ओके, बिड करना, बिडिंग करना। ऑलराइट, चलो अभी डिटेल में देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मटेरियल विच इज़ गिवन इन योर बुक। अंडर दिस मेथड द इशूअर कंपनी डिटरमाइंस द नंबर्स ऑफ शेयर्स एंड द इशू प्राइस एट विच इट्स शेयर्स विल बी सोल्ड बाय बिडिंग प्रोसेस। ओके, बिडिंग प्रोसेस होगा जहाँ पे कंपनी उसके इन्वेस्टर से ही पूछेगा कि आप कितने में परचेज करना चाहोगे। द कंपनी इशूज अ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है जो नॉर्मल प्रोस्पेक्टस होता है, ओके, उससे पहले भी एक कंपनी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है। जो पहले वाला इशू होता है उसको बोलते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, विच कंटेन्स प्राइस रेंज और प्राइस बैंड एंड आस्क द इन्वेस्टर्स टू बिड ऑन इट। ओके, कंपनी एक प्राइस रेंज देती है एंड कंपनी आस्क द इन्वेस्टर्स टू बिड करने के लिए बोलती है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। द प्राइस एंड ऑफ द प्राइस बैंड इज कॉल्ड एज फ्लोर प्राइस। द लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड इज कॉल्ड एज फ्लोर प्राइस। जो कम होता है, लोअर प्राइस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोर प्राइस। देखो यहाँ पे हमने देखा था लोअर प्राइस को हमने क्या बोला, फ्लोर प्राइस। ऑलराइट, वाइल द हाईएस्ट एंड इज कॉल्ड एज कैप प्राइस। हाईएस्ट को जो 200 था उसको हमने क्या बोला, कैप प्राइस और सेलिंग प्राइस। ऑलराइट, आगे देखते हैं। द फाइनल प्राइस एट विच शेयर आर ऑफर टू द इन्वेस्टर इज कॉल्ड एज कट ऑफ प्राइस। जो फाइनल प्राइस होगा विल बी कॉल्ड एज कट ऑफ प्राइस। ऑलराइट, आगे देखेंगे। इन्वेस्टर्स कैन बिड एनी नंबर्स ऑफ शेयर्स दैट दे आर विलिंग टू बाय एट एनी प्राइस विद इन द प्राइस बैंड। जो प्राइस कंपनी ने दिया हुआ है विद इन दैट प्राइस द इन्वेस्टर्स हैव टू बिड द प्राइस। ओके, बिडिंग इज केप्ट ओपन फॉर 5 days। कितने डेज के लिए ओपन होता है ये, 5 days के लिए। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, बिडिंग का जो प्रोसेस है कितने टाइम के लिए ओपन होता है, 5 days के लिए। द बिड्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी इज टू बी सबमिटेड टू द लीड मर्चेंट बैंकर्स कॉल्ड एज बुक रनर्स हु एंटर्स द बिड्स इन अ बुक। तो कंपनी ने एक मर्चेंट बैंकर, एक बैंक को अपॉइंट किया होगा, ये प्रोसेस के लिए लिंक किया होगा उससे, उसको बोलते हैं मर्चेंट और लीड बैंकर्स। ओके, वो क्या, उसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, बुक रनर्स हु एंटर द बिड्स इन अ बुक। जो बिडिंग जो आ रहा है लोगों से, वो जो लिखता है उसको बोलते हैं बुक रनर। ओके, आफ्टर बिडिंग इज ओवर, जैसे बिडिंग खत्म होगा, कंपनी फिक्स कट ऑफ प्राइस दैट इज फाइनल प्राइस बेस्ड ऑन द हाईएस्ट और बेस्ट प्राइस एट विच ऑल शेयर्स ऑन ऑफर कैन बी सोल्ड। जो बेस्ट प्राइस होगा, जो ज़्यादा लोगों ने ऑफर किया होगा, ओके, ऑन दैट प्राइस कंपनी इज गोइंग टू इशू अ शेयर्स, वो फाइनल प्राइस होगा, दैट इज कॉल्ड एज कट ऑफ प्राइस। कंपनी इशू अ प्रोस्पेक्टस विच कंटेन द फाइनल प्राइस आफ्टर रेड हियरिंग प्रोसेस। आफ्टर रेड हियरिंग प्रोसेस कंपनी इशू prospectus. Okay, company issue prospectus. All right, at which after bidding is over, company fix cut-off price based on the highest price or best price at which all shares on offer can be sold. Company issue prospectus which contains the final price. Okay, and then company will issue prospectus. Book building method is used for public issue, that is IPO, initial public offer, and FPO. FPO means what? Follow of public offer. Okay, जो IPO, initial public offer, means what? When a new company issue their shares for the very first time, that is called IPO, initial public offer. First time कंपनी ने शेयर इशू किया, that is called IPO. फर्स्ट IPO के बाद में when company issue shares, that is called FPO.
फॉलो अ पब्लिक ऑफर। ऑलराइट, चलो आगे देखेंगे अभी। लीड मर्चेंट बैंकर का मीनिंग, इंस्टीट्यूशन एंगेज इन द इशू मैनेजमेंट आइदर बाय मेकिंग अरेंजमेंट टू बाय और सेल सिक्योरिटीज ऑफ अन इशूइंग कंपनी और एक्ट एज अ मैनेजर और प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज। ओके, कंपनी ने इसको बोला, अरेंज किया होगा कि आपके थ्रू हम लोग बाय एंड सेल करेंगे शेयर्स का, उसी को बोलते हैं लीड मर्चेंट बैंकर्स। इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, देखो पार पे समझ लिया क्या था, 10 रुपीज़ का शेयर इक्वल टू 10 रुपीज़, इतना था उसका पार, 10 रुपीज़ का शेयर था। दूसरा इशू कितने में हुआ था, 15 रुपीज़, दैट इज़ प्रीमियम। ओके, प्रीमियम हुआ था। नाउ 10 रुपीज़ ऑफ शेयर्स इज इशूइंग जस्ट बिकॉज देर इज़ नो डिमांड इन अ मार्केट, तो कंपनी हैव टू सेल द शेयर्स। तो कंपनी 10 रुपये का शेयर कितने में बेचेगी, 8 रुपये में। दैट मीन्स कंपनी इज गिविंग डिस्काउंट ऑफ ₹2। ऑल राइट, a company can make public offer through two methods as follows. Okay, company can use two methods to issue the shares. First method of public offer, that is IPO, that is initial public offer first, and second follow up public offer. So now we are going to see IPO, initial public offer. Initial public offer, see now, initial public offer refers to the process of offering shares of a company to public for the very first time. That means initial IPO means what, company is issuing the shares for the very first time, that is called IPO. A new company or an existing company which had raised its capital earlier from promoters or other investors may offer its shares to the public when it is in need of fresh funds. ओके, कंपनी ने एक बार शेयर इशू कर चुका है, अगेन कंपनी विश टू इशू अ शेयर्स, क्योंकि कंपनी को अभी और पैसा चाहिए। द फर्स्ट टाइम the company offer its shares to the public is called as initial public offer. See, when company issuing the share for the very first time, all right, इसको बोलते हैं IPO, that is initial public offer. And before IPO a company is not a listed company and its shares are privately held. Okay, before IPO अगर कंपनी ने पहला पब्लिकली शेयर इशू नहीं किया, that means कंपनी ने अपना शेयर लिस्ट नहीं किया होगा स्टॉक एक्सचेंज पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं किया होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइवेट। कंपनी ने क्या किया था, उस शेयर्स को प्राइवेटली हेल्ड किया था, मतलब रखा था। बट आफ्टर IPO के बाद में अ कंपनी बिकम लिस्टेड, मतलब IPO इशू किया, मतलब इफ़ अ कंपनी वांट्स टू इशू अ शेयर्स, तो कंपनी हैव टू लिस्ट द शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द कंट्री। ओके, तो अभी IPO होने के बाद में ऑटोमेटिकली कंपनी क्या हो गई, लिस्टेड हो गई। All right, but after IPO a company becomes a listed company and its shares can be bought and sold by investors in the open market. Okay, उसके बाद में the investors, those who purchase the share, they can purchase or sell the shares in an open market. A company can make IPO through fixed price issue method or book building method. हमने दोनों ही देख लिया, यहाँ पे कंपनी ने खुद ने डिसाइड किया था और यहाँ पे कंपनी ने पब्लिक से पूछा बुक बिल्डिंग प्रोसेस में, मेथड में। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी IPO हमने देखा, इनिशियल पब्लिक ऑफर, व्हेन कंपनी इशू द शेयर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी FPO, ओके, फर्दर पब्लिक ऑफर और फॉलो अप ऑन पब्लिक ऑफर, FPO। लेट्स सी नाउ, व्हेन अ कंपनी इशू शेयर्स टू द पब्लिक आफ्टर एन IPO, okay, after IPO when company issuing the share, it is called as further public offer, that is further or follow on public offer. Thus every issue of shares by a listed company after its IPO is called as FPO. Okay, so when a company issue the shares, when company issue the shares after IPO, that is called FPO. Okay, क्या है, फर्दर पब्लिक ऑफर या फिर फॉलो अप ऑन पब्लिक ऑफर। FPO leads to an increase in the subscribed capital of a company. तो ऑलरेडी जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, ओके, जो सब्सक्राइब किया था शेयर्स ने, अभी कंपनी को और इंक्रीज़ करना है सब्सक्राइबर्स, तो कंपनी हैव टू इशू फर्दर शेयर्स। ओके, तो वहाँ पे ये हेल्प करता है FPO। ऑलराइट, तो ये था आपका IPO एंड FPO। तो ये कंप्लीट हमने देखा मेथड्स ऑफ पब्लिक ऑफर। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड FPO मीन्स व्हाट, फॉलो अप पब्लिक ऑफर। ऑलराइट, सो ये दो मेथड्स आपका, फर्स्ट वाला दैट इज़ पब्लिक ऑफर, जिसमें हमने IPO एंड FPO दोनों पढ़ा। तो उस मेथड देखा हमने, फिक्स बिल्डिंग मेथड, फिक्स मेथड और
बुक बिल्डिंग प्रोसेस, बुक बिल्डिंग मेथड. ऑलराइट, सो यहाँ पे एंड करते हैं हम लोग इस वीडियो को. एंड नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पार्ट मेथड नंबर बी, दैट इज एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. ऑलराइट, सर चलो, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच. एंड बिफोर दैट इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर कुछ भी नहीं समझा होगा, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ओके स्टूडेंट, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय.